हेलो 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 आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. Okay. Now I am audible. Yes, ma'am. Okay. So we will go for the chapter heredity. You write down. Earlier I have told one term, genetics. Genetics is what? Study of gene. ठीक है? So genetics has two branch. Note down. First is heredity. Second variation. Second is variation. ठीक है? Heredity means what? Inheritance of character. लिख लेना. Heredity in simple language. It is inheritance of trait. ट्रेट कहते हैं कैरेक्टर को. ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, वी ऑल नो यूनिसेल्ड एंड मल्टीसेल्ड. दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं. यूनिसेल्ड, सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व, रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हो. सो व्हेन सिंगल पेरेंट बॉडी इज इन्वॉल्व, then what happens? There is exact transmission of character from one to next generation. ठीक है? What about multi-cell? Multi-cell creates variation because two parent bodies are involved. Am I clear? Is that clear to you? Tell me. Unmute yourself and tell. It leads to variation. Multi-cell leads to variation. क्यों? Because two parent body involved. ठीक है? Now variation types बहुत इंपॉर्टेंट है. लिख लोगे? फर्स्ट सोमैटिक, सेकंड phenotypic and third genotypic. Three types of variation. Phenotypic is what? It is based on the physical appearance, like color, hairstyle, height. ये जितने भी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, they are all included under phenotypic variation. ठीक है? Genotypic, that is the very important. Genotypic means what? Suppose ये एक सेगमेंट है क्रोमोसोम का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सबको पता है. टू सेगमेंट्स आर देयर, जिसको क्रोमेटिड कहते हैं. सपोज ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये दो सेगमेंट है. ठीक है? तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एट द पेरेंटल स्टेज, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर व्हाट हैपेंस? कभी कभी this part of segment gets deleted. ठीक है? And it may join to the next, that DEF. तो क्या होगा?
you find any difference? This segment will suffer deletion, whereas this will suffer addition. समझ में आ रहा है? I am asking to you all, is it all clear? Tell me. Yes, ma'am. Okay. तो ये दो segment है during crossing over. Maybe a question for MCQ. If the question asks 4 options हैं, किस stage में होगा? Linkage, crossing over, inheritance, heredity, what? That is crossing over. So suppose this part of segment is deleted from this segment, this chromatid, and get attached to this part, this segment, then what will happen? This will suffer deletion and this will addition. तो क्या हुआ? There is a change. लेकिन ये change क्या होता है? It is जीनोटाइपिक change. मतलब लिख लो फिर से, ऐसे हमने क्लास में डिक्टेट करवाया था, but if you want again write down. When changes occurs due to change in the structure of the chromosome as well as place of gene over chromosome. ठीक है? Structural changes in chromosome and placing of gene over chromosome. ये दो इवेंट होता है in genotypic variation, and it is permanent. Mind it, it is always permanent. इसको हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, इसको कहते हैं जीन म्यूटेशन. That is the permanent. Somatic is what? Somatic, it is only the changes when happens due to external factor. External factor like environmental change, extreme temperature, ये जो conditions हैं, that is the somatic. When changes happens due to external factors. ये clear है सबको? बताओ 100%. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Then now come to Mendel's law. Very important. Mendel's law. Of inheritance. Mendel's law of inheritance. ये बात है 1901. Do you know his full name? John Gregor Mendel. और इनका अपीयरेंस सीन पे 1900 में हुआ था. ठीक है? फॉर व्हाट? कि हाउ द कैरेक्टर्स, हाउ द ट्रेट्स is transferred from one generation to next. इनका मेन मोटो बिहाइंड दिस ये था कि क्या फैक्टर है, क्या रीजन है कि वो ट्रेट या कैरेक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है? और ही गेव नंबर ऑफ times to think regarding this mode. और lastly उन्होंने क्या किया कि he took the pea plant, Pisum sativum, botanical name is that. He took the pea plant for his experimentation. ठीक है? तो ये pea plant जो था, why he took, इतने सारे प्लांट थे, क्यों उन्होंने पिक किया इसको? तो इसके 3 रीजंस थे. चाहते हो तो लिख लो. फर्स्ट था कि इट वाज बाइसेक्सुअल. सेकंड था रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाज वेरी हाई. एंड थर्ड, नंबर ऑफ प्रोजेनी
were much more than expected. ठीक है, तो ये 3 फैक्टर थे, 3 रीजन थे जिनके कारण उन्होंने वो पी प्लांट को फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन सुटेबल समझा. ठीक है, फिर इसके उन्होंने 2 टाइप के क्रॉस बताए. फर्स्ट लिख लो, टाइप्स ऑफ क्रॉसेस. फर्स्ट, मोनोहाइब्रिड. Monohybrid cross. Second one, dihybrid. Have you written? लिखा तुम लोगों ने? Yes? Yes, ma'am. Okay. Monohybrid and dihybrid. What is monohybrid? Mono means single, di means two. तो monohybrid लिख लो. When cross between single pair of contrasting characters. ठीक है? When cross between single pair of contrasting characters. ये लिख लो, dihybrid. When cross between two pairs of contrasting characters. ठीक है, ये दोनों टाइप का क्रॉस उन्होंने बताया. थर्ड था कि वो पी प्लांट का कितना कैरेक्टर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लिया. ऑलरेडी हुई एक्सपेरिमेंटेड ऑन 7 कैरेक्टर्स, बट 3 कैरेक्टर्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया टू स्टैब्लिश हिज 3 लॉज. 3 लॉ को उन्होंने स्टैब्लिश करने के लिए 3 कैरेक्टर्स पी प्लांट के लिए. और वो कैरेक्टर क्या था? राइट डाउन. फर्स्ट, लेंथ ऑफ द स्टेम. दूसरा, सीड कलर. थर्ड, सीड शेप. 3 फैक्टर्स उन्होंने पिक किए फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन, और ये 2 क्रॉस उन्होंने पिक किया. ठीक है, अब यू राइट डाउन कितने लॉस थे, क्या क्या लॉस थे. लॉस, फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड recessiveness. First was law of dominance and recessiveness. दूसरा था law of segregation. ठीक है, थर्ड था law of independent assortment. ये 3 लॉ उन्होंने स्टैब्लिश किए थे बाय पिकिंग दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम पी प्लांट. हैव यू रिटन? ये 3 लॉ लिखा तुम लोगों ने? जस्ट राइट डाउन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Should I rub? Should I rub this? Now see. What was law of dominance? डोमिनेंस कहते हैं
ओवर पावर, वेरी सिंपल टर्म में ओवर पावरिंग कहते हैं ना कि इज वेरी डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, मीन्स वॉट एवर एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर और पर्सनैलिटी जो भी हो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। तो इसमें उन्होंने क्या किया, सी वेरी केयरफुली, पी लेवल, पी लेवल इज पेरेंटल लेवल, ठीक है। पेरेंटल लेवल पे अभी हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा था वेरिएशन का। तो फिनोटिपिक, यहाँ फिनोटिपिक था, पहले ये उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लिया और लेंथ ऑफ द स्टेम को एक्सपेरिमेंट किया टू डिराइव हिज फर्स्ट लॉ। तो ये क्या था, टॉल, पेरेंटल लेवल पे किससे क्रॉस किया गया, सिंगल मोनोहाइब्रिड, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। एक कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, टॉल का कॉन्ट्रास्ट दैट इज डॉर्फ, ठीक है। तो ही टिक टू कैरेक्टर इन डिफरेंट मूड, तो सिंगल पेयर था विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। अब इसका जीनोटिपिक क्या होगा, इसको कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है, ये जीनोटिपिक हुआ। क्योंकि एक चीज जानो कि मेंडल ने अपने लाइफ टाइम में कभी भी जीन टर्म का इंट्रोडक्शन नहीं किया था। जीन इस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉनसन इन 1907, ठीक है। तो ये इस ईयर में मेंडल के एडवेंट के बाद ही यूज्ड फैक्टर, जीन को उन्होंने क्या कहा, फैक्टर। तो फिनोटिपिक में टॉल और डॉर्फ जो अपीयर हुआ, टॉल लगा डॉर्फ लगा, ठीक है। जीनोटिपिक, जीन लेवल पे दिस वाज डिनोटेड फ्रॉम कैपिटल लेटर, दिस वाज फ्रॉम स्मॉल लेटर, ठीक है। अब जब ये पेरेंटल लेवल पे आ गए तो अब क्या था नेक्स्ट स्टेप, गैमेट्स। गैमेट्स बताया ना हमने कि गैमेट्स का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, म्योसिस 1 होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, 46 है ह्यूमन बीइंग में तो क्या होगा 23। तो गैमेट्स में क्या आएगा, हाफ होगा, मतलब ये 2T का मतलब गैमेट्स सिंगल टी, यहाँ पे लाइकवाइज स्मॉल टी, ठीक है। अब गैमेट्स के बाद F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल, फीलियल कहते हैं ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन में ये क्या फाइंड आउट हुआ, ये क्रॉस होगा, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया तो व्हाट इज लेफ्ट, फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट वाज TNT, ठीक है, समझ में आया। और ये देखा गया कि F1 जनरेशन में ये जो प्लांट थे ऑल टॉल, जितने भी प्लांट थे रिजल्टिंग प्लांट इन F1 जनरेशन दे वेर ऑल टॉल। तो क्यों हुआ टॉल, ये भी तो कैरेक्टर था डॉर्फ का, बट इट वाज नॉट एक्सप्रेस्ड, इट वाज रिसेसिव इन, not in other generation, it was recessive only in F1 generation, उन्होंने क्या बताया था। और इस फैक्टर के, इस टर्म के आधार पे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेंथ को लेके ही एक्सपेरिमेंट किया और ही गिवन दिस लॉ, नो, all the 7 characters he took one by one for his experimentation and ध्यान से सुनोगे, वॉट एवर कैरेक्टर
only in F1 generation was dominant. समझ में आया या नहीं? Tell me. Yes, ma'am. Okay. F1 generation में कौन सा कैरेक्टर अपीयर हुआ? ओनली इन F1 जनरेशन दैट कैरेक्टर वेयर डोमिनेंट, नॉट फॉर दिस जनरेशन, ऑल टाइम्स टू कम. ठीक है, तो अब लिख लो फर्स्ट लॉ को डिफाइन क्या करना है, लिख लो. मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, लिखो जल्दी. मेंडल in his experiment told that whatever character appear only in F1 generation, where dominant, what was not appeared only in F1 generation, इसको पूरा अंडरलाइन कर दोगे. What was not appeared only in F1 generation were recessive. ठीक है? Is that all clear? Yes? समझ में आ रहा है Yes, सबको? ma'am. ओके. तो ये क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब ये प्लांट कैसा था? बाइसेक्सुअल. बताया ना हमने, प्लांट वाज बाइसेक्सुअल. तो अब दूसरे लॉ को, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, दूसरे लॉ को डिराइव करने के लिए यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंटिन्यू किया, और यही लेंथ, पहला कैरेक्टर, लेंथ ऑफ द स्टेम. So, to get the second law of Mendel, चूंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट था, तो इसको क्या किया गया? लिख लोगे, सेल्फ क्रॉस्ड. Why it was self crossed? Suppose MCQ question है, why it was self crossed? Tell me. आंसर मी, बस सिर्फ सुनते हो. आंसर ऑल्सो. Why it was self crossed? Tell me. Anyone? बोलो. No answer. Unmute yourself and answer. Because it was bisexual plant. Bisexual means one plant having male as well as female organ. इसलिए ये प्लांट चुना गया था. हमने पहले ही बताया, यही कारण था कि इस प्लांट को पिक किया उन्होंने फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और ये बाइसेक्सुअल था. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस. तो ये क्या था? फर्स्ट लॉ, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट जनरेशन में ड्वार्फ अपीयर नहीं हुआ. इसके लिए उन्होंने क्या कहा? लिखना चाहते हो तो लिख लो. ही टोल्ड कि इट विल अपीयर इन फर्दर जनरेशन, बट रेशियो क्या होगा? 1/4 of the total number of plants taken. ऐसा नहीं है कि वो डॉर्फ फिर अपीयर नहीं होगा, इट विल अपीयर, लेकिन 1/4 रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट टेकन. ठीक है? दिस वॉज फर्स्ट लॉ. अब देखो, टू गेट द सेकेंड लॉ, उन्होंने क्या कहा? ये तो फैक्टर थे, ये दोनों एंटिटीज मतलब कैरेक्टर,
फैक्टर, ये दोनों एंटिटीज को सेपरेट किए, ठीक है। और once taking as the male as well as female, ये मेल का है साइन, ये फीमेल का है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या होगा, टी 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 एन टी एंड इधर टी टी। अब देखो ये कैसा कैरेक्टर होगा, टेल मी what type of character, what type of character, this will be what type of character, tell me yes or no. This will be pure tall and this will क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, this will be T and T, here also capital and dwarf T, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी है, तो ये कैसा होगा, टॉल टॉल, ये टॉल ये टॉल, तो क्या होगा 3:1, और ये हो गया प्योर टॉल 1, ये हेट्रोजाइगस 2:1, ठीक है। 3:1 कैसा हो गया, ये देखने में है, ये तो प्योर टॉल है लेकिन टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो क्या है, ये तीनों हेट्रोजाइगस टॉल, प्योरिटी नहीं है, जीन में डिसिमिलैरिटी है, तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। ये क्या है 1:2:1, ये दिस इज प्योर टॉल, और ये दो जो है ये हेट्रोजाइगस टॉल, मतलब जीन फैक्टर डिफरेंट है, और ये हो गया अगेन होमोजाइगस ड्वार्फ, ये कंप्लीट प्योर जिसको कहते हैं प्योर ड्वार्फ, ये प्योर टॉल, ठीक है। तो 1:2:1, ये क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो, is that clear? So this was the law of segregation, हुआ ना, what he told कि ये दो कैरेक्टर जो था F1 जनरेशन में, ये क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर पेरेंटल क्रॉस इन F1 जनरेशन ऑल वेयर टॉल, जितने भी प्लांट थे वो टॉल थे। फिर टू गेट द नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, चूंकि ये इसको सेल्फ क्रॉस्ड किया गया, क्यों, बाइसेक्सुअल प्लांट था, बाइसेक्सुअल का मतलब वन प्लांट हैविंग बोथ मेल एज वेल एज फीमेल ऑर्गन, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट के कारण ये F1 जनरेशन के दो एंटिटीज को सेपरेट किया गया, और फिर देखो यहाँ सेल्फ एंड सेल्फ क्रॉस्ड, तो टेकिंग एज मेल एज वेल एज फीमेल, ये दोनों एंटिटीज को यहाँ रखा गया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या रिजल्ट आया 3:1, जो कि फिनोटिपिक कैरेक्टर था, और ये फिनोटिपिक कैरेक्टर मतलब इट वाज गिविंग द फीचर ऑफ टॉल, इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। और ये क्या था 1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो, मतलब अकॉर्डिंग टू द जीन कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ दोनों कैपिटल टी है प्योर टॉल, ये दोनों टी है हेट्रोजाइगस इम्प्योर था, लेकिन टॉल था, चूंकि ये डिसाइडेड था F1 जनरेशन में कि वॉट एवर कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन विल बी डोमिनेंट, तो यहाँ डोमिनेंट क्या था कैपिटल टी, ये क्या था होमोजाइगस डॉर्फ,
ठीक है। तो ये जो 3:1, 1:2:1 रेशियो क्या था, इट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब ही टोल्ड, इसको लिख लो, सेकेंड लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। टू गेट द सेकेंड लॉ, Mendel, out of the F1 generation, he separated the both entities T and T. When self crossed, this ratio was obtained 3:1 and 1:2:1. So this was the law of segregation. समझ में आया सबको? Yes or no? Am I asking something? Mute मत रहो हमेशा. Unmute yourself and answer me. Is it all clear? And in next class we will discuss the third law, that is very important. Ab now some minutes are only left, so I want to ask, is any problem in this chapter? Tell me yes or no. Yes? Tell me. Hello students. Yes, ma'am. Any problem you have? No, ma'am. कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि एक लास्ट लॉ बच गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। वो फिर टुमारो आई विल टेल अबाउट दैट. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट चैप्टर, क्योंकि हेरिडिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मेंडल्स लॉ इट वाज लेफ्ट to discuss in the class also, ठीक है। तो this was all about the Mendel's law. Evolution just introductory है, deleted है, ठीक है। और what is left to finish the syllabus? What topic or what chapter left? You will recall me in the next class, ठीक है। And tell rest students to join the class also. It's important for them, not for me. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. और ये दोनों लॉ जो हमने अभी डिक्टेट किया है लिख लियो तुम लोग, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क, और इसको एज होम असाइनमेंट भी लिख लेना कि व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू क्वेश्चन लिख लो, आई एम डिक्टेटिंग, क्वेश्चन लिख लो. व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स, जो अर्लियर हमने बताया, दो ब्रांच, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन वेरिएशन, define variation and its types. Next, what do you mean by heredity? What do you mean by heredity? Write its significance. Write its significance. ठीक है। एंड लास्टली लिख लेना, हु वाज मेंडल, और इनको पता है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम टोल्ड एंड डिस्कवर्ड कि क्या रीज़न है, कैसे इनहेरिटेंस और एक कैसे कैरेक्टर और ट्रेट, दोनों टर्म एक ही है, how the character passes from one generation to next. तो he was the person, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन किया
ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. नेम द प्लांट फॉर विच Mendel name the plant Mendel took for his experimentation. ठीक है, इसका botanical नाम है Pisum sativum. ठीक है, Pisum is the genesis, sativum is the species. And next question लिख लेना, write the laws given by Mendel. या ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो यू विल राइट ऑल दिस 3 लॉज. ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now some minutes are left, so any query regarding this portion? बिकॉज टुमारो के क्लास में हम लोग थर्ड लॉ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कभी कभी इंडिविजुअली 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का आता है. फॉर बोर्ड आई एम टेलिंग यू कि डिफाइन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाई दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन दिस इम्पॉर्टेंस. तो ये सारी चीज़ें वो I will discuss later on in the next class. Until then, you will write all that questions. Proper answer I should get. ठीक है? Is that clear? Tell me. Are you listening me? So in next class we will be meeting. Is that clear?